Okay, good morning class. Today we are going to study about essay writing. Essay writing. I know that you have already studied about how to write an essay. But you are not knowing how to write a perfect essay. I know that many of you just put the information you get about from internet, from the books and whatever in the previous knowledge. You just put all it in the way of just putting the things in a bag and in a very messy way. So you just write the essay in the way that you are just putting the information one by one and you are just putting the pile of the information and knowledge of one upon one. So no, essay writing is not that thing. Essay writing is just something different that may give you, when you see some news, when you read some news in your newspaper, you see that there is a combination, there is a logical sequence in that news. Like let me give you one example. Like somebody asks you about your personal information, so what you do? First you tell about yourself. You would tell that my name is this. Then you will tell about your father, about your mother, how many your brother and sister, and then you will tell about your locality, and then you will tell about your hobbies. Why don't you tell first hobbies and then your name? Because it is a logical sequence. Yes, it is a logical sequence to tell about anything in a logical sequence. Just like that in the essay also happens. So there should be a logical sequence in the essay if you are putting the information about a simple topic and you are putting the pile of the knowledge about a single topic. So you just keep in your mind whether you are while you are writing an essay, you should keep in your mind that what you are writing and in which sequence you are writing. Okay. So let me give you one example by opting a topic like your annual function. Okay. If I am talking about the annual function, so what ideas would come in your mind at the beginning? The ideas will come that when the annual function happened. Okay, like on 1st of January the annual function happened of your school. Then what happened in the annual function? Who had participated? Who was the chief guest? And what was the name of the annual function? And these would be the introduction. These would come in the paragraph of introduction. Okay, let me tell you first about the structure of essay. So structure of essay is introduction, body and conclusion. Only 3 points are there. Introduction, body and conclusion. एक बात अपने दिमाग में तुम लोग भर लो. क्या भरना है? सुनो ध्यान से. हिंदी के निबंध लिखने और इंग्लिश के निबंध लिखने में जमीन आसमान का अंतर होता है. हिंदी का निबंध जो होता है वो टॉपिक वाइज होता है. टॉपिक वाइज कैसे? मतलब उसमें हेडिंग्स लिखी होती हैं बच्चों, और उसमें अगर आप हेडिंग नहीं लिखोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे. लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है. इंग्लिश में आपको टॉपिक के जो सब टॉपिक्स हैं वो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती. ये समझ में आ रहा है सबको? कोई भी बच्चा जब ऐसे लिखेगा तो वो उसमें सब टॉपिक्स नहीं डालेगा. ठीक है, वो डायरेक्टली ऐसे लिखेगा पैराग्राफ को कि सब टॉपिक अपने आप ही पता चल जाए. जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि आप एलिफेंट के बारे में लिख रहे हो. ठीक है, आपने एग्जांपल लिया कि आप एलिफेंट के बारे में लिख रहे हो, तो पहले क्या लिखोगे कि एलिफेंट होता क्या है. ठीक, वो रहता कहाँ है. ठीक, फिर वो किस तरीके के फॉरेस्ट में रहता है. ट्रॉपिकल डेसिडुअस में रहता है, ट्रॉपिकल के एवरग्रीन में रहता है. फिर इतना बताने के बाद आप ये बताओगे कि दुनिया में एलिफेंट की संख्या कितनी बची हुई है, ये सब बताओगे. फिर एलिफेंट कहीं का नेशनल एनिमल तो नहीं है, ये भी बताओगे. इतना तो उसके इंट्रोडक्शन में आ जाएगा. ठीक, उसके बाद इसका सेकंड पैराग्राफ जो होगा वो होगा
मतलब उसकी प्रजातियां कितनी है, ये किस बायोलॉजिकल फैमिली के अंतर्गत आता है, इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, लेमार्क और डार्विन ने हाथी के बारे में क्या बातें बताई हैं, और उसके अलावा एलिफेंट हमारी लाइफ में किस तरीके से उपयोगी होता है, ये सारी किस पॉइंट में आएगा, आपके सेकंड पैराग्राफ में आएगा। ठीक है, फिर आपका थर्ड पैराग्राफ आएगा। थर्ड पैराग्राफ में आप ये लिखोगे कि एलिफेंट के बारे में, कि एलिफेंट में और क्या क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका यूज़ हम करते हैं, जैसे कि उसकी स्किन का यूज़ कहाँ होता है, और उसकी एज क्या होती है, और उसके अलावा एलिफेंट्स की कोई अमेजिंग फैक्ट्स अगर है उसके बारे में तो वो लिखोगे। तो लास्ट में फाइनली तुम ये बताओगे कि एलिफेंट के जो नंबर्स हैं वो दिन पर दिन क्या हो रहा है, डिटोरिएट हो रहे हैं, और हमें इसको जोड़ने के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से मतलब इनिशिएटिव्स लिए हैं हाथियों की संख्या को बचाने के लिए। उसके बाद आप लास्ट में लिखोगे कि वी रेस्पेक्ट एलिफेंट, और वो हमारे लिए कितना उपयोगी है, उनके साथ कोचिंग नहीं होनी चाहिए, उन्हें मारा नहीं जाना चाहिए, और उन्हें सर्कस में उनका यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें लास्ट में तुम्हें बतानी है। एलिफेंट के लिए अपना एक वेलफेयर विजन बताना है लास्ट में। ठीक है, तो ये हो गया, इस तरीके से एलिफेंट का तुम पूरा वो करोगे। ठीक है, अब कहोगे कि मैम क्या ऐसे में 3 ही पैराग्राफ होते हैं? ऐसा जरूरी नहीं है। अब कहोगे मैम तो फिर कैसे हमको पता चलेगा कि हमें कितने पैराग्राफ लिखने हैं? सीधी सी बात है, आपने क्या करना है, ये समझ रहा है कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो। आप क्लास 6 में पढ़ते हो तो 100 वर्ड्स का ऐसे इज इनफ। ठीक है, क्लास 7 में पढ़ते हो तो 200 वर्ड्स का ऐसे इज इनफ। तो 8th में चले आए हो तो कम से कम 250 वर्ड्स का ऐसे लिखने की आपके अंदर कैलिबर होनी चाहिए, तभी आप 10th में जाकर 450 वर्ड्स का मतलब इट मीन्स 450 वर्ड्स का आप लिख पाओगे। ठीक है, अभी ही नहीं लिख पाओगे तो बाद में क्या कहाँ लिखोगे? आई मेरी बात समझ में सबको? यस मैम। चलो, हाँ चलो ठीक है। अब हम सबसे पहले ये जानेंगे कि ऐसे राइटिंग के मेन मोटोज क्या होते हैं। मोटोज मतलब हम ऐसे लिखते ही क्यों हैं, ऐसे हम क्यों लिखते हैं, ताकि हम किसी चीज़ की एक लॉन्ग स्टडी कर सकें, मतलब किसी चीज़ के बारे में हम लॉन्ग स्टडी कर सकें, उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा करके उसे एक लॉजिकल सीक्वेंस देकर लोगों को इसकी जानकारी दे सकें, इसलिए हम ऐसे लिखते हैं। तो ये भी आपका लॉन्ग नैरेटिव में आता है, लॉन्ग नैरेटिव राइटिंग बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है, तो ये लॉन्ग नैरेटिव राइटिंग के अंतर्गत आता है। तो पहले तो पैराग्राफ्स में क्या क्या चीज़ें जरूरी होती है। पहली चीज़ तो जरूरी होती है, वो होती है आपकी यूनिटी। अब ये यूनिटी क्या चीज़ है जानते ही हो, वो वाली यूनिटी नहीं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई हम सब पहले यार की हवाई, वो वाला नहीं। इस यूनिटी का मतलब होता है कि एक पैराग्राफ में क्लास, आर यू एबल टू लिसन मी?